everyone and welcome to video 7 of Fantastic 5. So in this lecture series, I am solving the questions of past year paper. We started off with CAT 2019 and then I am solving CAT 2021 for you guys. So today in this video, I'll be talking about passage 2 of slot 2 for CAT 2021. So let's start. So this is what the passage was, and I'll be talking in this video, I'll be explaining this particular passage and then we'll move on to solve the questions and the approach to solve the questions. So I'm giving you a few minutes for you guys so you can pause this video for a while and read it yourself, and then I'll be back and will explain that what this video is all about. Okay, I'm sure you must have gone through the whole passage. Let's see what this passage was all about. So the genre of this particular passage was polity, right? As I always discuss that CAT is not that great with the students, so they do ask passages from the topics which we hate, which we don't love reading on a daily basis. But polity is something which you should read. You should know the ideologies, what's happening with capitalism. You should know what is happening with the communist countries. You should know what's happening, what is this capitalist movement all about. So all these things ideally you should know. So let's start, right? So what this passage is talking about, यहाँ से start करते हैं. बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर लास्ट तक, because more than this passage, I mean more than going through the passage, it's advisable that what is that important information which you need to look out for and the approach to solve the questions. Let's start. So I have elaborated. So who is this I don't know. Let's see. I have elaborated ... So when the ... is coming in the passages, which means that there is a lot of information which was there in those three dots, so which we need to decipher. There you can expect questions there as well. So this is what these three dots, because all these passages they are taken from, as I've said many a times, they are taken from different journals, different magazines, different reviews. So वहां से topics जो है लिए जाते हैं. This whole journal, the whole, I would say the reviews or this thing, they will be close to around 1200, 1500, 2000, 5000 words old, the whole passage. But what they give is the extract, which is close to around 500, 600 words per passage, right? So let's understand. So I have elaborated a framework for analyzing the contradictory pulls. So there are, he's talking about some contradictory pulls which are there. कहां पर है pulls? On nationalist ideology. और ये nationalist ideology यूनाइटेड स्टेट्स की नहीं, नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी इंडिया की. सो इंडिया की नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी पे कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी पुल्स हैं. उसको एनालिसिस कौन कर रहे हैं? ये अंकल. कौन है ये अंकल? पता नहीं. और किस चीज पे हो रहा है ये कॉन्ट्राडिक्टरी पुल्स? सो कॉन्ट्राडिक्टरी पुल्स किस चीज पे हो रहा है? In its struggle against the dominance of colonialism and the resolution it offered to those contradictions. So there is a contradiction. I mean, there is a dominance of colonialism. So colonies जो हमारे ऊपर dominate करके गई, colonies जो हमारे ऊपर dominate करके गई, and जो resolution, right? So what they are talking about, struggle against the dominance. इससे जो हम struggle हमने लिया, and उसका जो resolution आया struggle पे, उसके लिए ये contradictory pulls जो दो आ रहे हैं, उसको ये अंकल analysis कर रहे हैं. Let's see. Briefly, this resolution was built around a separation of the domain of culture in two spheres. What they are talking about, ये जो रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन पे रेजोल्यूशन जो प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑथर बोल रहा है इसके लिए मैं जवाब करूंगा, मैं आपको एक फ्रेमवर्क दे रहा हूं. बट पहले देख लेते हैं ये रेजोल्यूशन क्या दिया, उस पे बात कर लेते हैं. ये कॉन्ट्राडिक्शन से रेजोल्यूशन क्या है वो देख लेते हैं. वो दो चीजों पे बात कर रहा है कि ये जो रेजोल्यूशन है ये दो चीजों के, कल्चर की दो चीजों पे आया. क्या क्या था वो? एक मैटीरियल और एक स्पिरिचुअल. There are two things they are talking about. One is spiritual and one is material. ठीक है? So first thing which you need to understand is they are talking about the resolution which is built around two spheres, cultural and material. It was in this material sphere. अब ये पहला material sphere की बात कर रहा है. इस sphere के अंदर that the claims of Western civilization were the most powerful. ये क्या बोलता है material sphere के अंदर
कि जो क्लेम्स उन कॉलोनीज ने बना के दिए थे हमारे ऊपर वो पावरफुल थे। पहला मटेरियल स्फीयर है, ये मटेरियल स्फीयर जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन हमारे ऊपर करके गए थे वो पावरफुल था। क्या है वो देख लेते हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी, रैशनल फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही प्रॉपर स्ट्रक्चर इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, मॉडर्न मेथड ऑफ स्टेट क्राफ्ट, these had given the European countries the strength to subjugate non-European people. So ये जो यूरोपियन लोग जो कॉलोनीज बनाते चले गए, इन लोगों ने नॉन यूरोपियन लोगों को इस तरीके से दबा दिया, सब्जुगेट कर दिया, बट दैट स्फीयर वाज मटेरियलिस्टिक, दैट स्फीयर वाज मटेरियलिस्टिक। ठीक है, टू ओवरकम दिस डोमिनियन, अब इसको ओवरकम करने के लिए जो कॉलोनाइज पीपल थे, लेट्स से अगर मैं बात कर रहा हूं हिंदुस्तान की, जो कॉलोनाइज पीपल थे उन्हें सारी चीजें सुपीरियर चीजें सीखनी पड़ी, राइट। दो सुपीरियर टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द मटेरियल लाइफ एंड इनकॉर्पोरेट देम विद इन ओन कल्चर। सो इन लोगों ने उसको अपने कल्चर के अंदर ढालना शुरू कर दिया, बिकॉज अदरवाइज वो सब्जुगेट ही होके रह जाते। बट दिस कुड नॉट मीन द इमिटेशन ऑफ द वेस्ट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने हर अपनी लाइफ के एस्पेक्ट में वेस्टर्न लाइफस्टाइल को इमिटेट कर दिया। इमिटेट का मतलब उतार लिया, नकल कर लिया, नॉट इन ऑल द स्फीयर्स, राइट। फॉर देन द वेरी डिस्टिंक्शन बिटवीन द वेस्ट एंड ईस्ट वुड वैनिश। इफ दैट वुड बी द केस, तो वेस्ट और ईस्ट के अंदर जो भी डिफरेंस थे वो खत्म हो जाते। ऐसा नहीं हुआ। द सेल्फ आइडेंटिटी ऑफ द नेशनल कल्चर, जो पूरी नेशनल कल्चर की आइडेंटिटी थी, वो भी खतरे में पड़ जाती अगर हम हर तरीके से उसको इमिटेट कर लेते। तो द डिस्कोर्स ऑफ नेशनलिज्म शोज दैट द मटेरियल स्पिरिचुअल डिस्टिंक्शन was condensed into an analogous but ideologically far more powerful dichotomy। अब वो क्या बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं जो नेशनलिज्म जिस तरीके से आगे चला, नेशनलिज्म जिस तरीके से आगे चला, उससे एक चीज बहुत क्लियरली पता लग गया कि जो मटेरियल और स्पिरिचुअल का जो डिस्टिंक्शन है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इट वॉज आइडियोलॉजिकली फार मोर पावरफुल। ये दोनों बिल्कुल दीज वर लाइक पोल्स अपार्ट, एक्सट्रीम डायकोटॉमी की बात कर रहे हैं हम लोग। वो क्या बोल रहे हैं, उनको इसने डिवाइड कर दिया आउटर एंड इनर के अंदर। सो मटेरियल एंड स्पिरिचुअल को उन्होंने बोल दिया एक एकदम बाहर था और एक एकदम अंदर था। दैट इज द काइंड ऑफ डायकोटॉमी वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, अप्लाइंग द इनर आउटर डिस्टिंक्शन to the matter of concrete day-to-day living, separate the social space into घर and बाहर। उन्होंने क्या बोला, इस आउटर इनर को लगाने के बाद सोशल स्फीयर को हमने डिवाइड कर दिया घर और बाहर के बीच में। अब उसको क्या बोल रहा है, घर को वो बोल रहा है होम, बाहर को वो बोल रहा है वर्ल्ड, वर्ल्ड को वो बोल रहा है मटेरियल जो कि यूरोपियन कॉलोनीज ने इनको दिया, और होम को वो बोल रहा है इनर स्पिरिचुअल सेल्फ जो कि हमने नहीं खोया या हमने एज अ इंडियन नेशनलिस्ट ने नहीं खोया। और यहीं पर वो बात कर रहा है कॉन्ट्राडिक्टरी पुल्स की। हमने हमारे इनर सेल्फ को नहीं खोया, हमने इनर और आउटर को अलग अलग रखा। द वर्ल्ड इज अ ट्रेचरस टेरेन ऑफ द परस्यूट ऑफ मटेरियल इंटरेस्ट। ये जो वर्ल्ड है, इट इज अ ट्रेचरस टेरेन, ये एक धोखाधड़ी वाला, एक मटेरियलिस्ट चीजों के पीछे जाने वाला एक चीज है। वेयर प्रैक्टिकल कंसीडरेशन, जहां पर सिर्फ प्रैक्टिकल कंसीडरेशन सुप्रीम मानी जाती है, अंदर की स्पिरिचुअल की या अंदर की कोई भी चीज को नहीं माना जाता है। इट इज ऑल्सो टिपिकली द डोमेन ऑफ द मेल। और उसने क्या बोला, ये वर्ल्ड की चीजों के ऊपर, प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर माना गया, ये मेल चीजें हैं, मेल लोग हैं, उनका डोमेन है। The home is the essence must remain unaffected by profane activity of the material world। और बाहर ये जो फालतू की मटेरियल चीजों में, मटेरियल बातों में चीजें चल रही हैं, घर की चीजें उनसे दूर रहनी चाहिए। और घर जो है वो कौन रिप्रेजेंट करती है, विमेन। एंड सो वन गेट्स एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोशल रोल्स। और इस वजह से सोशल रोल का भी आइडेंटिफिकेशन हो गया कि बाहर जो हैं वो मेल रहेंगे और घर जो हैं वो फीमेल रहेंगे। देखो उन्होंने कितना अच्छी तरीके से, बताओ क्या बताया, कि ये जो कॉलोनीज हैं, ये जो कॉलोनीज हैं, यहां से कंसेप्ट उन्होंने मटेरियल और स्पिरिचुअल का बताया,
उसके बाद वो घर और बाहर में आ गए और उसके बाद वो मेल और फीमेल डिस्टिंक्शन में आ गए सोसाइटल कंट्रोल्स के हिसाब से. सो व्हाट अ गुड paragraph, what a good structure of the overall passage. The colonial situation and the ideological response of nationalism to the critique of Indian tradition introduced a new substance to and affected the transformation. अब वो क्या बोल रहे थे? colonial situation मतलब material चीजें एंड द आइडियोलॉजिकल रेस्पॉन्स मतलब स्पिरिचुअल चीजें. इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये न्यू सब्सटेंस डाल दिया है इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर. वो क्या बोल रहा है? द मेटीरियल स्पिरिचुअल डाइकोटॉमी टू विच द टर्म्स वर्ल्ड एंड होम कॉरेस्पॉन्डेड. इन्होंने क्या एक्वायर किया? अ वेरी स्पेशल सिग्निफिकेंस इन द नेशनलिस्ट माइंड. इस वजह से एक बहुत स्पेसिफिक चीज जो है वो नेशनलिस्ट माइंड में आना शुरू हो गई. The world was where the European power challenged the non-European people. वर्ल्ड वो चीज थी जहां पर यूरोपियन लोग नॉन यूरोपियन को चैलेंज करते थे. आगे वो क्या बोल रहा है? एंड बाय वर्च्यू ऑफ इट सुपीरियर मटेरियल कल्चर हैड सब्जुगेटेड देम. वही चीज दोबारा रिपीट कर रहा है. वो आगे क्या बोल रहा है? बट द नेशनलिस्ट asserted it had failed to colonize the inner essential identity of the East, which lay in its distinctive and superior spiritual culture. So East यानी कि हम लोग क्या बोलते थे कि इन्होंने मटेरियल कल्चर के अंदर तो शायद हमें सब्जुगेट कर दिया होगा, बट ये असर्ट करते थे, उस पर टिके हुए थे कि ये ईस्ट की स्पिरिचुअल डोमिनेंस को कभी भी नहीं हटा पाए. दैट्स व्हाट दे वर टॉकिंग अबाउट. इन द एंटायर फेस ऑफ नेशनल स्ट्रगल, इस पूरे नेशनल स्ट्रगल जो चल रहा था, द क्रूशियल नीड वॉज टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड स्ट्रेंथन द इनर कोर ऑफ द नेशनल कल्चर. अब वो क्या बोल रहे हैं? इस पूरे नेशनल स्ट्रगल के अंदर इट वॉज नॉट एनीथिंग एल्स, इट वॉज बेसिकली टू प्रोटेक्ट द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, जिसके ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा प्राउड फील करते थे. ठीक है. वंस वी मैच द न्यू मीनिंग ऑफ द होम वर्ल्ड डायकोटॉमी, जिस दिन हम लोग इस दोनों का डायकोटॉमी जो है इनको मैच कर देंगे विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोशल रोल्स बाय जेंडर, वी गेट द आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क विद इन विच नेशनलिज्म आंसर्ड द वुमेन क्वेश्चन. और इनको जब हम मैच कर देंगे किसके साथ? सोशल रोल्स के साथ, तब हमें जो है ये वुमेन का आंसर मिलना शुरू हो जाएगा कि हम जब बात कर रहे हैं कॉन्ट्राडिक्टरी पुल्स की. इट वुड बी अ ग्रेव एरर टू सी इन दिस. बहुत बड़ा गलती हो जाएगी अगर हम इसके अंदर देखेंगे. एज लिबरल्स आर एप्ट टू इन देयर डिसअपेयर एट द मैनी मार्क्स ऑफ सोशल कंजर्वेटिज्म इन द नेशनलिस्ट प्रैक्टिस. यहां पर वो क्या बोल रहा है कि लिबरल्स जिस तरीके से दिखाते हैं सोशल कंजर्वेटिज्म इन नेशनलिस्ट प्रैक्टिस, वो बहुत ही गलत चीज है. अ टोटल रिजेक्शन ऑफ द वेस्ट. Quite the contrary, the nationalist paradigm in fact supplied an ideological principle of selection. It was not what liberalist was talking about, but it is something the nationalist paradigm जो इस तरीके से आई, इसने सिलेक्शन बताया कि घर में क्या होना चाहिए और बाहर क्या होना चाहिए. Right? So this is what the passage was talking about, a very tricky passage as far as the slot 2 is concerned. I think this was the passage which was most difficult to comprehend and answer, right? The questions could have gone wrong in this particular passage. Let's talk about the questions. Let's talk about question number 1. Which one of the following, if true, would weaken the author claim in the passage? Author के claim है, इसको कौन सी चीज है जो weaken करेगा? So it is a idea based question. It is a idea based questions, right? Let's start. Forces of colonial modernity played an important role in shaping anti-colonial Indian nationalism. अब वो क्या बोल रहा है? जो colonial modernity थी, when we are talking about the material sphere, जब हम बात कर रहे थे, उन्होंने अच्छे इकोनॉमिक रिकवरी, अच्छा साइंस, सब की जो बात कर रहे थे, तो फोर्सेस ऑफ कॉलोनियल मॉडर्निटी, यूरोपियन मॉडर्निटी प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग एंटी कॉलोनियल इंडियन नेशनलिज्म. यस, बिकॉज इन्होंने क्या बोला था साफ साफ कि इस वजह से हमें भी उसको अडॉप्ट करना पड़ रहा था, राइट? वी नीड टू अडॉप्ट द थिंग्स विच दे हैव गिवन. सो दिस इज समथिंग विच विल नॉट वीकन, बिकॉज ये तो साफ साफ दिया हुआ है, तो ये तो वीकन नहीं करेगा, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता. मैं आपको लॉजिक भी बता रहा हूं साथ साथ में. लेट्स गो टू द सेकंड. इंडियन नेशनलिस्ट
rejected, Indian nationalists rejected the cause of English education for women during the colonial period. Nowhere given, nowhere given, nowhere given. That is out of context guys, that is out of context. Nowhere given, ये कहीं पर भी नहीं दिया हुआ था, पहला वाला दिया हुआ था तो वो वीकन नहीं कर सकता है. Let's go to option number 3. The colonial period saw the hybridization of Indian culture in all the realms as it came in contact with British European culture. Now यहां पर एक प्रॉब्लम है. क्या? देखिए प्रॉब्लम क्या है, यहां पर क्या दिया हुआ था, मैं एक बार सब कुछ इरेज करके आपको समझा देता हूं. जस्ट अ मिनट. यहां पर क्या दे रखा है अगर आप देखेंगे, व्हाट दे हैव रिटन हियर इज, सो व्हाट दे हैव रिटन हियर इज टू ओवरकम दिस domination, to overcome this domination, the colonized people had to learn imitation of West, जो अपने पहले ऑप्शन में दे रखा था, in every aspect of life. For then the very distinction between the, अब वो क्या बोल रहा है, ये जो इमिटेशन है इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग हर एस्पेक्ट के अंदर उसको इंटीमेट कर रहे हैं. हम हर एस्पेक्ट के अंदर इंटीमेट नहीं कर रहे. अगर हर एस्पेक्ट के अंदर इंटीमेट कर देंगे तो हमारा तो नेशनलिज्म जो है वो बिल्कुल खतरे में आ जाएगा. और यहां पर क्या लिखा हुआ था, दैट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑल रीम्स as it came in contact with the British culture. समझ में आया? So it was not in all realms. It was only in the materialistic thing in between, जहां से वो लोग पावरफुल थे. उन्होंने हर चीज के अंदर इमिटेट नहीं किया. हर चीज के अंदर इमिटेट करते तो हमारा सेल्फ खत्म हो जाता. इसीलिए मेरा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल वीकन कर रहा है. ये ऑथर जो बोल रहा था उसके एग्जैक्टली अपोजिट बोल रहा है, तो ये वीकन कर रहा है. फोर्थ ऑप्शन पे जाते हैं. The Industrial Revolution played a crucial role in shaping the economic prowess of Britain in the 18th century. So वो बोल रहा है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. पहली बात मुझे नहीं पता क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज नोवेयर गिवन, सो इट इज अ एलियन ऑप्शन. कई बार हम लोग वीकनिंग वाले क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं एलियन ऑप्शन से, जो कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है. समथिंग विच इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वो आपका आंसर नहीं होगा. वीकनिंग वो चीज होगी कि ऑथर ने जो चीज बोली है आप उससे एग्जैक्टली अपोजिट बोल रहे हो. भैया जो ऑप्शन सेकंड एंड फोर्थ है ये तो ऑथर ने बोला ही नहीं है. सेकंड एंड फोर्थ तो ऑथर ने बोला ही नहीं है. फर्स्ट ऑथर ने बोला था तो वो सपोर्ट कर रहा है, और सेकंड जो है, और सॉरी थर्ड जो है वो एग्जैक्टली अपोजिट है जो ऑथर ने बोला है. इसलिए वी आर टॉकिंग अबाउट वीकनिंग, right? So guys, once you are done with the passage, done with the questions, I don't know till how many students are doing it, but my suggestion is once you are done, please write in the comment section below that how you, I hope you are liking the video, so that if there are any changes needs to be done, we can do that. Based on your feedback, we can come up with the videos like this. So आखिरी तक बने रहना और इस वीडियो को देखते रहना. Which one of the following explain the contradictory pulls on Indian nationalism? We are talking about contradictory pulls. क्या चीज थी वो contradictory pulls? Now, if I talk about this particular question, attempt करना चाहिए था, +3 लाने चाहिए थे. कैट लेवल पे बात कर रहा हूं. ये क्वेश्चन शायद छोड़ देना चाहिए था, राइट? फिर भी देखते हैं हम लोग. ओके. डिस्पाइट इट्स स्पिरिचुअल सुपीरियरिटी, हम बात कर रहे हैं ईस्ट की स्पिरिचुअल सुपीरियरिटी थी. इंडियन नेशनलिज्म हैड टू फाइट अगेंस्ट कॉलोनियल डोमिनेशन. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है. सो ये कॉन्ट्राडिक्टरी पुल हो सकता है, इसको एक बार मार्क कर लेते हैं. सेकंड, डिस्पाइट इट्स फाइट अगेंस्ट कॉलोनियल डोमिनेशन, इंडियन नेशनलिज्म हैड टू बोरो फ्रॉम द कॉलोनाइजर इन द स्पिरिचुअल स्फीयर. ना बाबा ना, स्पिरिचुअल तो हमारा ही स्ट्रांग था. इन लोगों ने हमें कुछ नहीं दिया, हमने इनसे कुछ बोरो नहीं किया. आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, एलियन ऑप्शन, बाहर निकल जाओ. आराम से इस लाइन को पढ़ना चाहिए था. थर्ड, डिस्पाइट इट्स साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इंफीरियोरिटी, हमारी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल इंफीरियोरिटी के बावजूद इंडियन नेशनलिज्म हैड टू फाइट अगेंस्ट कॉलोनियल डोमिनेशन, राइट? अब इसको मैं बताता हूं क्या करेंगे, लास्ट पे आते हैं. डिस्पाइट इट्स फाइट अगेंस्ट कॉलोनियल डोमिनेशन, इंडियन नेशनलिज्म हैड टू बोरो द कॉलोनाइजर इन द मटेरियल स्फीयर. अगेन ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. बोरो कहीं नहीं कर रहे थे, बोरो कहीं नहीं कर रहे थे, राइट? सो मेरा सेकंड एंड फोर्थ तो चला गया.
मेरा सेकंड एंड फोर्थ तो चला गया. नाउ आई एम लेफ्ट विद ऑप्शन नंबर 1 एंड 3. नाउ थर्ड के अंदर क्या बोल रखा है? डिस्पाइट इट्स साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इंफीरियोरिटी, इंडियन नेशनलिज्म हैड टू फाइट अगेंस्ट कॉलोनियल डोमिनेशन. राइट, ये तो इन्होंने कर रहे थे, इस वजह से तो ये नीचे हो गए थे, क्योंकि ये उसमें पावरफुल थे, क्योंकि ये उसमें पावरफुल थे. अब इसका उनकी लड़ाई से लेना देना नहीं था, ये तो आराम से उनको ले ही रहे थे, इन्होंने कहीं मना ही नहीं किया. उन्होंने बोला कि इस वजह से वो सब्जुगेट कर पा रहे थे, ये उनको एकोमोडेट करे जा रहे थे. बट इफ यू सी ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 क्या बोल रहा है? ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है कि वो खुद इतने ज्यादा स्पिरिचुअली सुपीरियर होने के बावजूद उन्हें कॉलोनियल डोमिनेशन को फाइट करना पड़ रहा था. क्यों? क्योंकि उन्होंने मटेरियल स्फीयर के अंदर हमें सब्जुगेट कर दिया था, उन्होंने मटेरियल स्फीयर के अंदर हमें सब्जुगेट कर दिया था, इसीलिए ऐसा हो रहा था. और थर्ड इज टॉकिंग अबाउट कि हम लोग टेक्नोलॉजिकली इंफीरियर थे, ऐसा कहीं नहीं दे रखा है, इसीलिए विल मार्क ऑप्शन नंबर फर्स्ट एज एन आंसर. और इसी वजह से मैं बोल रहा हूं इस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए था, गलत होने के चांसेस पूरे थे. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द पैसेज, पैसेज के इंफॉर्मेशन के हिसाब से सारी चीजें ट्रू हैं एक के अलावा, सारी चीजें ट्रू हैं एक के अलावा. लेट्स सी क्या चीज है. ओके, चलो लेट्स सी. फर्स्ट, इट वाज नॉट एज आइडियोलॉजिकली पावरफुल एज द इनर आउटर डायकोटॉमी. देख लेते हैं एक बार. वो बोल रहा है इट वाज नॉट एज आइडियोलॉजिकली पावरफुल एज, इफ यू सी हियर व्हाट दे हैव मेंशन्ड, द डिस्कोर्स ऑफ नेशनलिज्म शोज that the material spiritual distinction was condensed in an analogous but ideologically far more powerful the dichotomy between outer and inner. So outer and inner dichotomy ज्यादा powerful था, outer and inner dichotomy ज्यादा powerful था. सो अगेन वो क्या बोल रहा है? स्पिरिचुअल मटेरियल डायकोटॉमी वाज नॉट एज पावरफुल. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इनर आउटर जो है वो ज्यादा पावरफुल था. सो इसीलिए ये ट्रू है, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज मुझे फॉल्स का आंसर मार्क करना है. सेकंड पे जाते हैं. कॉन्स्टिट्यूटेड द प्रीमाइस ऑफ द घर एंड बाहिर. बिल्कुल, स्पिरिचुअल और मटेरियल की वजह से ही हम लोग घर एंड बाहिर पे आए थे, जहां मैंने बताया था, जहां मेल और फीमेल पे आ गए थे. बिल्कुल ये भी ट्रू है. थर्ड, हेल्प इन सेफ गार्डिंग द आइडेंटिटी ऑफ नेशनलिज्म. बिल्कुल उन्होंने लास्ट में लिखा हुआ है दिस इज व्हाट द आंसर इज, कि किस तरीके से हमने अपना नेशनलिज्म को सेफ करके रखा. बिकॉज हम लोग बात कर रहे थे किसकी? हम लोग बात कर रहे थे इन सारी डायकोटॉमी की. और फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है? रिप्रेजेंट अ कंटिन्यूएशन ऑफ द एज ओल्ड ऑपोजिशन इन इंडियन कल्चर. अब वो क्या बोल रहा है? ये जो स्पिरिचुअल मटेरियल है, ये इंडियन कल्चर के अंदर अपोज करते थे और काफी सालों से अपोज हो रहा था, ऐसा कहीं पर भी नहीं दे रखा था. इट्स एन एलियन ऑप्शन. डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको +3 देके जा सकता था, डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको +3 देके जा सकता था. 4 क्वेश्चन थे, पहले में +3, दूसरा मैं छोड़ने के लिए बोल रहा हूं, तीसरा क्वेश्चन +3. और अगेन ये क्वेश्चन भी आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू शुड लीव. यस, यहां पर हम करेंगे, बट यस उस टाइम बात कर रहा हूं. सो इस पैसेज के अंदर अगर आपके रफली 6 मार्क्स आ जाते हैं, यू शुड बी हैप्पी, और आप इस पैसेज से बाहर निकल जाने चाहिए थे. लेट्स सी which one of the following best describe the liberal perception of Indian nationalism. एक बार पैसेज पे चले जाते हैं और लास्ट में देख लेते हैं वो क्या बोल रहा है. It would be grave error to see in this, as liberals are apt to, in their despair at the many marks of social conservatism in nationalist practice, a total rejection of the West. Quite the contrary, इनके opposite, the nationalist paradigm supplied an ideological principle of selection. अब देखते हैं यहां पर फोर्थ ऑप्शन. लेट्स सी. Indian nationalism embraced the changes brought about colonialism in Indian women. हेलो, वो लोग क्या चेंजेस की बात कर रहे हैं, क्या चेंजेस लेके आए हैं, उसको इंडियन नेशनलिज्म ने एम्ब्रेस किया. वी डोंट नो, हटा दो. इंडियन नेशनलिस्ट डिस्कोर्सेस
reaffirmed traditional, they have reaffirmed, मतलब ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स थे उसको उन्होंने रीअफर्म किया, हमें नहीं पता, हमें कहीं पर भी ऐसा नहीं दे रखा था कि पहले ट्रेडिशनल रोल्स थे उनको इन्होंने रीअफर्म करा। थर्ड, इंडियन नेशनलिज्म सोफिस्टिकेशन रिसाइडेड इन इट्स डिस्टिंक्शन ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द स्पिरिचुअल स्फीयर। वो क्या बोल रहा है, इंडियन नेशनलिज्म का जो सोफिस्टिकेशन है वो इसी के अंदर है कि इन इट्स डिस्टिंक्शन ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्पिरिचुअल स्फीयर। ये आंसर हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, बट इस आंसर के अंदर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है डिस्टिंक्शन इन व्हाट सेंस, पॉजिटिव और नेगेटिव। Distinction in what sense, positive or negative, I am not able to make out. And if I am not able to make out positive and negative distinction, how can I mark the answer? How can I mark the answer? And anyways, ये liberal perception की बात लास्ट में दे रखी है जब हम सिलेक्शन ऑफ रोल्स की बात कर रहे हैं, that Indian nationalist discourses provide an ideological principle of selection. That is what given in the last line of the paragraph, and that's why the answer should be option number 4. I am repeating it again. Why I am not marking the other 3 options? I am just repeating it again for you guys. Why not? First, we embrace the changes. I don't know. We reaffirmed. I don't know. Third, in what sense I am talking about, positive or negative, I don't know. And liberal wala thing is given in the last line, and that's why option number 4 is the right answer. Right? So with this, we are coming to this session of Fantastic 5 in which I have solved CAT 2021 passage 2 for you guys. In the next video, I'll come up with the next passage, 4 more questions, few approaches, few more descriptions. So stay tuned with eCoaching and keep watching the videos. Thank you.